This portion we took from Acts 8, हमने ये जो भाग लिया प्रेरितों 8 से लिया, 12 and 13, 12 और 13, and 18 to 23. 18 से 23 तक. Just to have some background of this man. और ये इस मनुष्य के साथ जो पृष्ठभूमि है, Well, Philip came to Samaria. जब फिलिपुस सामरी में आया, There was already a man there, a magician called Simon. और पहले से ही वहाँ पर एक जादूगर था शामोन बोल के, He was doing lot of miracles और वो काफ़ी चमत्कारों को कर रहा था through magic power. और अपने जो है जादू के सामर्थ्य से, And he was astonishing the people, और वो लोगों को अचंभित भी कर रहा था, and they were all calling him great और सब लोग उसे महान बोल रहे थे. and in power of God. और Power of God. ये परमेश्वर का सामर्थ्य है. So through his magic art, he was astonishing them. और उस जादुओं के द्वारा वो लोगों को अचंभित कर रहा था. Philip came and was preaching the word of God. फिलिपुस वहाँ पर आया और वो परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा था, Jesus Christ and kingdom of God. और यीशु मसीह और परमेश्वर का राज्य. People who heard him, जिन्होंने इसको सुना, both men and women, were baptized. स्त्री और पुरुष, उन्होंने बपतिस्मा लिया. Simon also had good news. शामोन ने भी जो है सुसमाचार सुना Was converted, और मन फिराया, believed, विश्वास किया, and converted, baptized, and became a full-time worker. विश्वास किया, मन फिराया, बपतिस्मा लिया और एक पूर्ण समय सेवक बन गया. Started accompanying Philip everywhere. और फिलिपुस के साथ वो सहभागी बनकर जाने लगा. But he was always astonished by the miracles that were happening. लेकिन वो हमेशा अचंभित हो जाता था जो चमत्कार वहाँ पर होते थे. If you are going to a wedding, अगर आप एक शादी में जा रहे हो, when you come back from the wedding, जब आप शादी से वापस आते हो, what will you report to others? आप क्या जो है खबर दूसरों को दोगे शादी के बारे में? What will you report when you come from a wedding? क्या खबर आप दोगे जब आप शादी में जाके वापस आए? What will you describe? Food. பொண்ணு நல்லா लड़की बहुत सुंदर थी. अच्छा program. Eh? Okay. Okay. What did you enjoy? What will you describe? Decoration was good. सजावट काफी अच्छी थी. अच्छा खाया. Very good. बड़ी भीड़ थी. What will you describe? आप क्या बोलोगे? What's the problem? When you come back, you are telling mummy, what will you describe? Food. खाना. All the arrangements were good. Arrangement. The bridegroom or the bridegroom. अंत में जो है जो शादी लड़के ने अपने आप को समर्पित He कर is दिया. afraid of that. हाँ, वो उस बात से डरते हैं. However, nobody will describe the sermon. लेकिन कोई भी जो है प्रचार के बारे में वर्णन नहीं करेगा. What will you see there? क्या देखोगे आप वहाँ? What you are interested in. आपकी अभिरुचि जिसमें है. When the meetings were going on, Simon was watching what? जब सभा चल रही थी तो शामोन क्या देख रहा था? The miracles. चमत्कारों को. Later we see again in the 18th verse, when Holy Spirit was given, he was watching that again. और 18 वचन में देखते जब पवित्र आत्मा दिया गया तो उसको भी देख रहा था वो. Why? क्यों? He was doing miracles. वो चमत्कारों को कर रहा He था. was becoming popular. वो मशहूर भी हो रहा था. This attracted him. उसने आकर्षित किया. Now what developed in him? उसके अंदर क्या जो है विकसित हो गया? 23rd verse. 23वां वचन, 8 का 23. क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है. What is that? क्या है वो? What is gallbladder? और पित्त क्या है? What is it compared to?
और पित्त को किससे तुलना की जाती है? It's very bitter. वो बहुत ही कड़वा होता है। Bitter jealousy. और जो है कड़वा जलन, Gallbladder, gall is compared to bitterness and jealousy. और गॉल ब्लैडर उसको कहते हैं, उसको जलन से जोड़ा जाता है, कड़वाहट से। What developed now? अभी क्या विकसित हो गया? In my town, somebody else is becoming popular. मेरे नगर में दूसरा कोई व्यक्ति मशहूर हो रहा है। In my department, somebody is becoming prominent. मेरे विभाग में दूसरा एक व्यक्ति जो है मशहूर हो रहा है। In my church, somebody else is becoming popular. मेरे कलीसिया में दूसरा और कोई जो है मशहूर हो रहा है। I was leading the choir, somebody else is becoming popular. और मैं कॉयर की अगुवाई कर रहा था, लेकिन अभी दूसरा और कोई मशहूर बन रहा है। What develops? क्या आपके अंदर विकसित होता है? Thanksgiving धन्यवाद or jealousy? की जलन? Same thing develops. वही काम हुआ। Now he wanted to become more popular. और शमौन भी और मशहूर होना चाहता था। Now what does he want? He cannot go back, he knows, to the old ways. He is converted. और वो वापस पुराने मार्ग में जा नहीं सकता, क्योंकि उसने मन परिवर्तन कर दिया है। Now he wants spiritual gifts for going. अभी उसको आत्मिक वरदाने चाहिए आगे जाने के So लिए। popularity through spirituality. और मशहूर होना कैसे? आत्मिकता के द्वारा। Was he converted? क्या उसने उसमें मन फिराया था? Eh? What conversion? कैसा परिवर्तन था? He left out. He was doing it for popularity. Now he came to Christ. He again wants same popularity. और वो पहले भी मशहूर होने के लिए कर रहा था, वो मसीह में आया, अब भी उसकी इच्छा है Earlier कि it was मशहूर through होना है। magic. Now it is through spirituality. पहले वो जादूगरी से करता था, अभी आत्मिकता से करना चाहता है। Earlier I was achieving popularity through effort. Now through prayer. और पहले मैं जो है मशहूर होना हासिल कर रहा था अपने प्रयासों से, अभी जो है मैं आत्मिकता से कर Now रहा हूं। it's all through prayer, brother. और ये अभी पूरी प्रार्थना के साथ है भाई। Climbing ladder is through prayer only. और सीढ़ी को चढ़ना जो है वो प्रार्थना के साथ ही है। I pray that the other person will fall. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि दूसरा व्यक्ति गिर जाए। I don't pull him. मैं उसे खींचता नहीं I हूँ, don't use any wrong method. मैं कोई गलत उपयोग नहीं करता हूँ। The intention of heart is wrong. आपका जो मनोकामना है मन की, वो गलत है। His heart was not right before God. और उसका जो हृदय है वो सही नहीं था परमेश्वर के सामने। The prayer was very good prayer. प्रार्थना जो थी बहुत ही अच्छी प्रार्थना थी। On whomsoever I lay my hand, let him receive the gift of the Holy Spirit. और मैं जिस पर भी हाथ रखो उसमें जो है आत्मा के वरदान मिल जाए, पवित्र आत्मा के। Our prayers, the words may be right, हमारी जो प्रार्थना है, शब्द शायद सही हो सकते हैं, but the Spirit of God knows the heart. लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा है वो हृदय को जानती है। The Lord said, you justify yourself before men, but I know your heart. और प्रभु कहता है तू अपना न्याय करता है दूसरों के सामने, लेकिन मैं तेरे हृदय को जानता हूँ। No need was there to bear witness of any man to Jesus. He knew what is in the heart of man. और यीशु मसीह के बारे में गवाही देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि इस व्यक्ति के मन में क्या है। So it said he did not entrust himself to anyone. वो उसने अब किसी को अपने आप को किसी के हाथों में नहीं सौंपा। So that's the background of the passage. और ये जो है भाग की पृष्ठभूमि है। We'll read one portion now to study a new subject today.
और हम एक भाग को पढ़ेंगे ताकि हम एक नए विषय का अध्ययन करें. One of the very severe consequence of our rebellion with God. और बहुत बड़ा परिणाम जो होता है परमेश्वर से बलवा करने के द्वारा. Severe consequence बहुत- of our rebellion with God. बहुत ही खतरनाक परिणाम परमेश्वर से बलवा करने के कारण. We'll study this from और- Matthew 6, हम इसका अध्ययन करेंगे मत्ती 6 19 to 21. 19 से 21. मत्ती 6 19 से 21. First you study it silently. आप उसे शांत रीति में आप पहले उसे पढ़ें. You can start reading it from here. यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे. अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेल लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेल लगाते न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है, वहाँ तेरा मन भी लगा है. Now we are going to have a Bible study. अभी हम जो एक बाइबल का अध्ययन करेंगे. What is the topic that is taught by Jesus Christ here? यहाँ पे कौन सा विषय जो है यीशु मसीह के द्वारा सिखाया गया है? Eh? What's the topic? Treasure. विषय क्या है? धन. Every treasure is taught. और सारा धन सिखाया गया है. Open mind. खुला मन. What are the facts that you can see here about treasure? और क्या क्या सच्चाई आप यहाँ पे देख सकते हो धन के बारे में? Start from 21. 21 से शुरुआत करें. The next person, read. अगला व्यक्ति पढ़े. For where your treasure is, there your heart will be also. What do you understand by that? इससे आप क्या समझते हो? Wherever your treasure will be there. That is say, no, what is you understand? इससे आप क्या समझे हो? Do something somewhere, I'll be thinking of it always. Why? Is it safe? क्यों? Because it can be destroyed anytime by anyone. Why are you thinking of it? Because it's important to me. Ah. So treasure is something precious to me. और धन या खजाना आपके लिए क्या है? बहुमूल्य है. So I am preoccupied with that. और मैं उससे घिरा हुआ हूँ. Whatever is important, I am thinking about it. जो भी महत्वपूर्ण है मैं उसके बारे में सोचता हूँ. Understand? That is all what is said. और This phrase will come many places in idiomatic expression. और ये जो है ये जो शब्द है कई जगह आएगा और ये इसका अर्थ जो है कई अलग प्रकारों में होगा. Whatever is important for me, I will always be thinking about it. जो भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है मैं उसके बारे में हमेशा सोचता रहूंगा. 19th verse. 19वां वचन. अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेब लगाते और चुराते हैं. Do not store up your treasure on earth. और अपने धन को पृथ्वी पर इकट्ठा ना करो. When I tell you don't sit there, what are you doing? जब मैं आपसे कहता हूँ उधर मत बैठो तो आप क्या कर रहे हो? You're sitting there. बैठे हो. Do not store up on earth means what are we doing already? और पृथ्वी पर इकट्ठा ना करो. अभी पहले से ही हम क्या कर रहे हैं? Yes. Presently, where are we keeping it? वर्तमान में हम कहाँ रख रहे हैं? On earth. पृथ्वी में. Okay. What will happen if you keep it on earth? क्या होगा अगर आप उसे पृथ्वी में रखोगे? Moth eaten, कीड़ा खाया rusted, और काई stolen. और चोरी. 3 things will happen. 3 बातें हो जाएंगी. Something very precious, something you are preoccupied with. When you store it on earth, you know it will be stolen. What will you try to do?
और जो सब आपके लिए बहुमूल्य है, जिससे आप घिरे हुए हो और जो वर्तमान में है और आपको मालूम है वो आपसे चोरी हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? What will you try to do? आप क्या करने की कोशिश करोगे? Protect. उसे सुरक्षा देंगे, Protect by all means. हर प्रकार से उसे सुरक्षा देंगे, Because it's very important thing for you. क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Okay. Your important treasure is very safe. और आपका जो महत्वपूर्ण धन है वो सुरक्षित है। How will your mind be? आपका मन कैसा रहेगा? Peaceful. शांति। So it provides happiness. तो ये इससे आपको खुशी मिलती है। How long it will be there? कितना समय ये बना रहेगा? So it will be long or short. दीर्घ रहेगा, छोटा रहेगा? Temporary. और तत्कालिक है। What will be there always? क्या है जो हमेशा रहेगा? Worried about whether it will be stolen. चिंता ये रहेगी, Perpetual anxiety. आपके अंदर जो है एक व्याकुलता बनी रहेगी। Okay. So what to do now? और अभी क्या करना है? 20th verse. 20वां वचन। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। Plan to keep it in heaven. और योजना बनाएं कि आप उसे स्वर्ग में रखें। These are the only things taught there. और यही बातें वहाँ पे सिखाई गई हैं। Okay. Now what are the characteristics of treasure you read here? और धन की क्या क्या विशेषताएं आप यहाँ पर पढ़ें? Precious, बहुमूल्य, preoccupied, पहले से घिरा हुआ, presently on earth. वर्तमान में पृथ्वी में है, हाँ. हर प्रकार से सुरक्षा दो, आपको खुशी देता है और आपको व्याकुल भी रखता है। Then plan to keep it in. योजना बनाएं कि आप उसे स्वर्ग में रखें। If these are the characteristics of treasure, अगर ये एक धन या खजाने की विशेषताएं हैं, what is your treasure? आपका धन क्या है? Right. लिखें। It must fit in with all this. और इन सब के अंदर ये शामिल होना चाहिए कि आपका धन क्या है। All of you right. इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर ही होना चाहिए जो साथ बोला है। सब लोग लिखें कि आपका धन क्या है। Need not think too much because you're always thinking about it. ज्यादा मत सोचो उसके बारे में, क्योंकि आप हमेशा उसी के बारे में सोचते हो। Remember, when Jesus Christ is teaching this, it is applicable to all people, all over the world, at all times. और जब यीशु मसीह सिखा रहा है, ये सब के लिए है, सारे संसार में है और सब समय के लिए है। So, what is your treasure? आपका धन क्या है? What you wrote? आपने क्या लिखा है? Material things. और भौतिक वस्तुएं। Material things means some mud there and some rock here. भौतिक वस्तुएं, थोड़ा कीचड़ उधर, थोड़ा Tell पहाड़ it उधर। properly. सही, एकदम आप स्पष्ट करके बताएं क्या है भौतिक वस्तुएं। Old newspaper. पुराना अखबार, These are all material things. ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। Me. My cell phone. सेल फोन, मनी, पैसा। Money. Money. How will you keep it in heaven? Is there a bank? कैसे आप स्वर्ग में रखोगे? वहां पर एक बैंक है क्या? What's your treasure?
It's applicable. ये आप इसको आप लागू कर सकते हो. It's all applicable to all human beings. ये सब पर लागू होता है, सारे मनुष्यों पर लागू होता है. So what is your treasure? आपका धन क्या है? What occupies your mind always? क्या आपके मन को घेरे रहता है हमेशा? Nothing materialistic that I require. Pardon? Nothing materialistic that I require. I didn't say materialistic. मैंने भौतिक The नहीं Lord कहा. also doesn't say that. प्रभु भी नहीं कहता है भौतिक. Why are you thinking materialistically? क्यों आप भौतिक वस्तुओं के बारे में सोच? Plan to keep it in heaven. You will Yes. not be able to take material things to heaven. I don't know. You have to say. The Lord teaches. According to the teaching of the Word of God, what is your treasure? परमेश्वर के वचन के हिसाब से आपका धन क्या है? Myself. Myself. Okay. मैं हूँ. What is myself means? मैं ही हूँ, उसका क्या मतलब है? Your cells and then what? The inner quality, the spirit. Spirit. Who will steal it? कौन चोरी करेगा आत्मा को? That's how you need to think. It could be stolen by myself itself, How will you steal it? by me corrupting it. How do you corrupt it? कैसे आप भ्रष्ट करोगे इसे? कैसे आप You इसे are चोरी not करोगे? thinking. A piece of land. Piece of land. जमीन का टुकड़ा How will you take it to heaven? कैसे स्वर्ग में लेके जाओगे? Child. This was there before marriage also. और ये शादी के पहले भी था. This treasure. Applicable to unmarried people also. और जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए भी ये लागू है. अपने लिए जीना. To live for myself. Money, home, family, parivar, work. Pardon? पैसों की चिंता. Eh? Worry about money. 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 Right. My wife, before marriage also was there. पहले planning करिए. Mutually agreed together. आपसी सहमति है ये. Okay. The problem is, समस्या है we don't think. आप सोचते नहीं हो. We don't apply the word of God to us. आप परमेश्वर के वचन को लागू नहीं करते हो. Shall we listen to the Lord Himself? क्या हम प्रभु को सुन के देखेंगे प्रभु क्या कहता है? When we come back for breakfast, we'll think about it. और जब नाश्ता करके हम वापस आएंगे फिर हम उसके बारे में सोचेंगे. Teach about the topic on treasure. और प्रभु ने धन के विषय के बारे में क्या सिखाया? We look at the Bible. हमने बाइबल की ओर देखा. Matthew 6, मत्ती 6 1 and 2. 1 और 2. सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे. इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके. Okay. We're going to ask some questions. हम कुछ सवालों को है पूछने वाले हैं. What is the motive here? यहाँ पे जो उद्देश्य क्या है? Verse 2. What's the motive? क्या है उद्देश्य दूसरे वचन में? Is Praises from the people. praise from people. और लोगों से बढ़ाई. Any other word used in other Bibles? और दूसरे बाइबल में दूसरा कोई शब्द इस्तेमाल किया गया है? Applauded. लोगों द्वारा ताली बजाया जाना. Any other word? दूसरा और Honored. और आदर मिलना मनुष्यों से. Okay. Any other? Eh? दिखावा बनने. No. Motive. आर्टिफिशियलिटी. Is it written?
attract attention. ध्यान को खींचना, Glory. 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 महिमा, Okay. Various words are used. अलग कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। What is the method they use? कौन सा तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया, या विधि कौन सी है? What's the method they use? कौन सी विधि का इस्तेमाल किया उन्होंने? No, read Bible. उस वचन What's में it? कौन सी विधि का इस्तेमाल किया गया है? Hmm? Giving to the needy. No. Blowing that trumpet. Announce. Trumpet. What does it mean? What does it mean? Trumpet, blowing trumpet means? तुरही बजाने का मतलब क्या है? What's the modern word? आधुनिक शब्द क्या है? Publicity. Advertisement. विज्ञापन, अपना खुद के बारे में प्रचार करना। What is the result they have? इसका परिणाम क्या है? They have had the reward. Means what? There is no more reward. They had the reward means what? उनका प्रतिफल मिल चुका है, मतलब क्या है? Worldly reward. What's the reward? क्या है वो प्रतिफल? What the money was. What was it? उनका उद्देश्य क्या था? Honor from man. मनुष्यों से आदर, They have already received it. और उन्होंने ये पा चुके हैं ये। Now, connect other Bible passages. और दूसरे बाइबल के भागों को भी जोड़े। This man, Simon, why did he want the gift? शामौन को क्यों वरदान चाहिए थे? No. What is his motive? उसका उद्देश्य क्या है? Honor from people. और लोगों से आदर पाना। A couple came to church, Ananias and Sapphira. एक जोड़ा आया कलीसिया में, अनन्या और साफिरा, They died. वो मर गए। What killed them? किसने क्या मारा उनको? किसके तरह वो मर गए? Eh? Yes? Why did they lie? क्यों उन्होंने झूठ बोला? Yes, you are right. Why did they lie? क्यों उन्होंने झूठ बोला? आप सही बोल रहे हो। They wanted to keep something for themselves. No. Then Peter said, before selling it to us yours, after selling it to us, you could decide. और पतरस ने कहा बेचने के पहले भी There was तुम्हारा no था, compulsion. बेचने के बाद भी तुम्हारा है, आप निर्णय ले सकते हो। There was no compulsion. यहाँ पे कोई दबाव नहीं है। And what is the problem? तो समस्या क्या है? That's what. Keeping for themselves, you could keep. अपने लिए रखना है तो आप रख सकते हो अपने लिए। Many others are kept for themselves. That's not the problem. बहुत लोगों ने अपने लिए रख रखा है, तो ये नहीं है समझ या, लेकिन उन्होंने एक अंश ही दिया था। Why did they pretend? क्यों उन्होंने ऐसा नाटक किया कि उन्होंने पूरा दे दिया? उनका भरोसा उसमें। Earlier, before that, we read Barnabas sold everything and brought. और उसके पहले पढ़ते बरनबास ने सब कुछ बेचा और वो लेके आया। When everybody is selling and bringing, if you need to get, what should you do? और जब सब बेच के सब खरीद बेच के लेके आ रहे हैं, तो आपको अगर आदर मिलना है तो आपको क्या करना है? If everybody is wearing Raymond suiting, what should you do? अगर सब लोग रेमंड के कपड़े धारण कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? You have to wear Raymond. Otherwise, what will people? नहीं तो आप To get honor from people, they lied. उन्होंने मनुष्यों से आदर पाने के लिए झूठ बोला They died. और वो मर गए। Is it happening in the church now also? क्या ये कलीसिया में आज भी घटित हो रहा है? Are you doing it? क्या आप ये कर रहे हो? Similar thing. समान चीजें। Why we don't die? क्यों हम नहीं मरते हैं? You don't know the answer. आपको इसका उत्तर मालूम नहीं है। Okay. I was thinking dead people don't die. मैं तो ऐसा सोच रहा था कि मरे हुए व्यक्ति मरते नहीं हैं। Dead in sin and trespasses. और अपने पापों और अपराधों में मरे हुए। They are not born again. वो उन्होंने नए सिरे से जन्म नहीं लिया है। They may not die. They will continue. वो मरेंगे नहीं, वो लोग आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे। Okay. Why did Pilate crucify Jesus Christ? पिलातुस ने यीशु मसीह को क्यों क्रूस पे चढ़ाया? Why? क्यों? Public demand. Public demand. To please people. जनता को खुश करने के लिए। Why did Cain kill Abel?
काइन ने हाबिल को क्यों मारा? Jealous. जलन। Why did Joseph's brothers wanted to kill Joseph? यूसुफ के भाई लोग क्यों यूसुफ को मारना चाहते थे? Jealousy. जलन। Why did Saul wanted to kill David? और साउल क्यों दाऊद को मारना चाहता था? Why did Moses' sister and brother became angry with Moses? मूसा के भाई और बहन क्यों मूसा से क्रोधित हो गए? Are you the only one who receives God's word? क्या तू ही एक है क्या जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर पाता है? Jealousy. जलन। Why did Haman wanted to kill Mordecai? हामान क्यों मुर्देखाई को मारना चाहता था? He didn't get up. क्योंकि वो उठा नहीं। So Bible is full of stories. What is it bringing out? बाइबल में जो है सारी कहानियां हैं, ये क्या प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं। What are people acting on? और लोग किस चीज का नाटक कर रहे हैं? Somebody is putting me down. My honor is going down. I will kill the other person. कोई तो मुझे नीचा कर रहा है और मेरा आदर जा रहा है, मैं उस व्यक्ति को मार डालूंगा। Do we do this? क्या हम ऐसा करते हैं? Do we do this? क्या हम ऐसा करते When हैं? you study Bible, does it reflect your character? जब आप बाइबल का अध्ययन करते हो तो क्या ये आपके चरित्र को दर्शाता है? Does Bible read your life? क्या बाइबल आपके जीवन को पढ़ता है? Yes? You don't have problem like this. आपको ऐसी समस्या नहीं है। Okay. Let us look at another portion. Matthew 6 verse 5. मत्ती 6 का 5 की ओर हम जाएंगे। Next person. अगला व्यक्ति पढ़ेगा मत्ती 6 का 5। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। Okay. Shall we ask the same question? क्या हम वही सवाल पूछेंगे? What is the motive here? यहाँ पे उद्देश्य क्या है? Honor from? Honor from the honor. आदर। What's the method they use? कौन सी विधि का उन्होंने इस्तेमाल किया? Where do they stand? वह कहाँ पर खड़े हैं? Where? कहाँ पे खड़े हैं वे लोग प्रार्थना करने वाले? Why street corners? क्यों सड़क के मोड़ों पर खड़े हैं? Oh. Maybe street corners, lot of corners will come. और सड़क के कोने और बहुत सारे कोने आएंगे। So they select the right place for prayer. उन्होंने सही जगह चुना प्रार्थना के लिए। Listen to the word of God. Does it speak to me? परमेश्वर के वचन की और आप ध्यान लगाएं, क्या वो मुझसे So बात they कर रहा है? also wanted publicity. और इनको भी जो है अपने बारे में बोलना अच्छा लगता था, उसको बताना। Advertisement. विज्ञापन। Now what's the result they have? इसका परिणाम क्या हुआ? So what is that? Honor from men. Honor they got. उनको भी जो है मनुष्यों से आदर मिला। How do people use prayer today for honor? आज लोग कैसे प्रार्थना का इस्तेमाल करते हैं आदर के लिए? Suppose somebody is asking you to pray in a big meeting. अगर आपसे कोई बड़ी सभा में प्रार्थना करने को कहे, You say, no, I don't know how to pray. That brother will pray nicely. नहीं, मुझे तो प्रार्थना करना नहीं आता है, वो भाई ना बड़े अच्छे से प्रार्थना करते हैं। Nice prayer means what? अच्छी प्रार्थना मतलब क्या? What should be there? One. क्या होना चाहिए अच्छी प्रार्थना में? पहली बात बताओ। Usually, when you appreciate prayer, what must be there? अमूमन जब आप प्रार्थना को आप उत्साहित करते हो तो क्या होता है उसमें? Quoting lot of Bible verses. बहुत सारे बाइबल के वचनों को बोलना। What must be there? क्या होना चाहिए अच्छी प्रार्थना में? Loud sound, Loud sound. ऊंची आवाज। there's affection in the sound. Oh,
ओह, Affection. So the affection must come to the point of हाँ, तो आपको एक Tears प्रेम होना चाहिए आपकी प्रार्थना में कि आंसू भी आने चाहिए। then what else must be there? और क्या होना चाहिए? Oh, shaking. Long prayer. लंबी प्रार्थना। Eh? To scream. To scream. Scream. Oh. Authority. अधिकार, Powerful. What is the power, ma? सामर्थ्य क्या है? सामर्थ्य से क्या? Eh? Eh? Thanking God. धन्यवाद देना परमेश्वर का। Yes. What else? Pray for country. देश के लिए प्रार्थना करना। Now, so every name must be brought in. सबका नाम को बोलना। When you pray जब आप प्रार्थना करते in हो, public, जब सबके सामने खुल्लम खुल्ला में, does your prayer become little artificial? क्या आपकी प्रार्थना थोड़ी बनावटी बन जाती है? It changes. Changes. Why? क्यों? What people would think about me. Oh, to impress people. तो लोगों को पर एक छाप छोड़ने के लिए। So prayer used for impressing people. और प्रार्थना किस लिए इस्तेमाल करते हैं? लोगों पर एक छाप छोड़ने के लिए। And you begin to imitate that prayer also. आप फिर उस प्रार्थना की आप नकल भी करने लगते हो। It's sad, no? काफी दुखद बात है ना? But people think that is prayer. लेकिन लोग सोचते हैं ये प्रार्थना है। Does God listen to that prayer, brother? क्या परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनता है भाई? Does he? When the Pharisee went to pray, फरीसी लोग प्रार्थना करने के लिए गए। did God listen to that prayer? क्या फरीसियों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना? No. नहीं। When you are confident of your prayer, जब आपके अंदर हियाव है अपनी प्रार्थना के बारे you में, don't even begin to pray. आप प्रार्थना करना शुरू भी नहीं करते। If you do not know how to pray, अगर आपको मालूम नहीं है कैसे प्रार्थना करना है, you may be beginning to pray. और आप प्रार्थना करने की शुरुआत शायद कर चुके होंगे, Before this God of this universe, और इस ब्रह्मांड के परमेश्वर के पहले what can I utter? मैं क्या उसके सामने मैं क्या बोल सकता हूँ? Is that inner preparation is there? क्या ये आंतरिक तैयारी है आपके पास? The tax collector said, Lord, I am a sinner. चुंगी लेने वाले ने कहा, प्रभु मैं तो एक पापी हूँ, Have mercy on me. मुझ पे दया दिखा। God listened to that prayer. और परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना। Modern Pharisees prayed tax collector's prayer. और आधुनिक फरीसियों ने चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को कहा। They come and say, I am also a sinner, Lord, have mercy on me. प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। But when he goes out, somebody calls you sinner, come here, he becomes angry. और लेकिन जब वो बाहर जाता है और कोई बुलाए पापी इधर आ, तो वो क्रोधित हो जाता है। I heard you praying. मैंने सुना तुझे प्रार्थना करते हुए। That was only prayer. वो तो केवल प्रार्थना है बस। Why do you believe it? फिर क्यों आपने उस पर विश्वास किया? Do you believe all that you say in prayer? क्या आप उस सब पे विश्वास करते हो जो आप प्रार्थना में कहते हो? Matthew 6 verse 16. मत्ती 6:16। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। Okay. Shall we ask the same question? क्या हम वही सवाल को उठाएंगे दोबारा? What is the motive? यहाँ पर उद्देश्य क्या है? उपवास का मोटिव क्या है? उपवास का उद्देश्य क्या है? Honor. आदर। What's the method they use? विधि, कौन सी विधि का इस्तेमाल किया? What for? किसके लिए इस्तेमाल किया? Publicity. और अपना खुल्लम खुल्ला अपनी बढ़ाई के लिए। What's the reward result they have? इसका परिणाम क्या है? Honor from people.
और मनुष्यों से आदर। How do people achieve this now? कैसे लोग इस प्रेम को हासिल कर लेते हैं? How? कैसे? How do you let others know that you're fasting? कैसे आप दूसरों को ये बताओगे कि आप उपवास में हो? Do not call me that I will be on fast on that day. Okay. What other ways? और दूसरा कौन सा जरिया है? Banners put. Okay. Any other way? Bring juice and sharja only. I am in fasting. उन्होंने एक अंश Any other method? Give me your prayer request. I am fasting today. और आपके प्रार्थना निवेदन को दो, आप लोग, मैं आज उपवास में हूं। WhatsApp. व्हाट्सएप। You stand where the food is served. Don't eat. Everybody will ask you. जब जहाँ पे खाना बट रहा है आप वहाँ पे खड़े हो लेकिन आप खाते नहीं हो तो सब लोग पूछेंगे। Okay. Things that is done outside, things that done inside. Both motive is what? In all these things. जो चीजें जो बाहर की गई हैं और चीजें जो अंदर की गई हैं, इसका उद्देश्य क्या है? Honor. आदर। What do they get? उनको क्या मिलता है? So, from this background, now you read 19th verse. इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर आप 19वां वचन पढ़ें। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। So, what is the treasure you are seeking? आप कौन से धन की खोज में हो? All the time you are bothered about what? हमेशा आप किस बारे में चिंता में लगे रहते हो? What will others think? दूसरे लोग क्या सोचेंगे इस बारे में? In this group, some of you are not able to speak. और Why? इस झुंड में आप में से कुछ लोग जो है बोल नहीं पा रहे, बात नहीं कर रहे। Why? क्यों? What will others? दूसरे लोग क्या सोचेंगे? Some speak more. Why? कुछ लोग ज्यादा बात करते हैं। क्यों? To impress people. To impress people. लोगों पर अपनी छाप छोड़ने के लिए। Is the fear everywhere? क्या ये डर हर जगह है? What will others think? दूसरे लोग क्या सोचेंगे? You are going to study this in small groups now. और ये आप इसका अभी अध्ययन करोगे छोटे छोटे झुंड में। Will divide yourself into how many are there now? 25 24 are there. 25 Okay, 5 in a group. 5 लोग एक झुंड में। You can number your group. I will number it later. What are you going to study? और हम क्या अध्ययन करने वाले हैं, नंबर हम उसका बाद में देंगे। First. पहला, Find other words in Hindi and English for honor. आदर के दूसरे और शब्द ढूंढो। Now you saw many words here. यहाँ पर आपने आदर के कई शब्दों को देखा। उसी प्रकार Like that there will be so many other words. और उसी प्रकार आदर के और भी कई शब्द होंगे, उन्हें ढूंढो। Okay. Then when you find so many words, what do I understand from that? जब आपको बहुत सारे शब्द मिल गए तो उससे आप क्या समझते हो, That also you write. उसे भी आप लिखें। Everybody in the group will write. सब जो झुंड में है सब लिखेंगे, All will participate. सब लोग उसमें भाग लेंगे। Second is methods I am using to get honor from people. और उन विधियों का जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि मुझे आदर मिले मनुष्य से। कौन कौन सी विधियों का आप इस्तेमाल करते हो? All the methods you are using, you can use it. Discuss it. और आप जो भी विधियों का इस्तेमाल कर रहे हो उसको आप बातचीत कर सकते हो उस बारे में। Because there will be not time for methods others use. और जो फिर समय नहीं रहेगा दूसरे विधियां जो दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। But some of us will be interested in what others are doing. और बाकी लोग, दूसरे ज्यादातर लोग की रुचि होती है कि इनकी ये लोग क्या कर रहे हैं उसको सुने।
Let us see what are the methods we use. और क्या विधियों का इस्तेमाल हम करते हैं उसे देखेंगे. In those methods, some of you may have some secret tricks. और जो विधियों का आप इस्तेमाल करते हैं उसमें कुछ आपके जो है रहस्य जो आपके ट्रिक्स रहेंगे. You teach them others also, they can also use in future. और आप वो जो आप पैंतरों का आप जब इस्तेमाल करते हैं उन पैंतरों को आप दूसरों को भी बताओ तो वो भी उन पैंतरों का इस्तेमाल करेंगे. Methods. विधियों. Then, after studying all the methods, जब इन सब विधियों का अध्ययन करने के बाद can you classify them into groups? क्या आप इनको विभाजित कर सकते हो एक एक समूह में. Okay, that's another study. वो एक और अध्ययन है. Third, तीसरा, how much money I spend on getting honor from people. कितना धन मैं खर्चा करता हूँ लोगों से आदर पाने के लिए. Your proportion of your income. आपका जो आय है उसका जो भाग है You can find out what is the proportion you use for that. कितना पैसा आप अपनी आय से खर्चा करते हो लोगों से आदर पाने के लिए. Now you must think whatever others will think. आप ये भी सोचना है जो कुछ दूसरे लोग सोचते हैं. Are you buying things on credit also? क्या आप उधार में चीजों को खरीद रहे हो. Your car, your certain fridge or washing machine, all may be on credit. आपका जो फ्रिज है, कार है, वॉशिंग मशीन है, ये भी सब उधार में होगा जो आप हफ्ता भरते हो. That means you are spending above your income. तो आप क्या कर रहे हो, आपकी जो आय है उस आय से आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हो. So maybe you are in debt trap also. और शायद आप जो है कर्ज के जंजाल में फंस भी गए हो. Maybe after conducting a party, और एक पार्टी करने के बाद, maybe wedding party, एक शादी की पार्टी करने के बाद you are in debt. आप कर्ज में हो. So how much money I am spending? मैं कितना पैसा खर्चा कर रहा How हूँ, much time I am using? कितना समय का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ. In the 168 hours, 168 घंटों में how much time? कितना समय. You must know that why I am working. आपको ये भी जानना है क्यों मैं काम कर रहा हूँ. I am working to make money. मैं काम कर रहा हूँ धन बनाने के I लिए. am making money to buy what? और मैं धन बना रहा हूँ क्या खरीदने के लिए. Then you will know that how much time I am spending. तो फिर आपको पता चलेगा आप कितना समय इसके पीछे खर्च कर रहे हो. When you are in the house, what is your concern? जब आप घर में रहते हो तो आपकी चिंता क्या रहती है. Suppose it's all like this. सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ है. Say, what will others think? और What will others think? दूसरे लोग क्या सोचेंगे तो सब सही कर कर रखना. Are you bothered about like this and spending all your time on cleaning, क्या आप decorating? क्या आप इस चिंता में लगे रहते हो आपके घर में साफ सफाई करना, सजावट करना. How much time you are spending on makeup? कितना समय आप बिता रहे हो श्रृंगार करने में. What will others think? दूसरे लोग क्या सोचेंगे. Take that issue and discuss well. और उस मुद्दे को आप उठाएं और उस मुद्दे की आप बातचीत करें. 4. चौथा, What are the consequences? और इसके परिणाम क्या क्या होंगे. 1. पहला, In relationships, रिश्तों में, relationship with others दूसरों के साथ रिश्तों में इसके परिणाम क्या होंगे. and with God. परमेश्वर के साथ. Then what happens to my body? मेरे शरीर के साथ क्या होता है. Running after this, what happens to my body? मैं इसके पीछे दौड़ रहा हूँ तो उसका प्रभाव मेरे शरीर पर क्या पड़ता है. All must participate. Only one person should not spend time. सब लोगों को इसमें भाग लेना है, केवल एक ही व्यक्ति बोलते ना रहे. Is there any childhood connection for this problem? क्या इस समस्या का मेरे बचपन से कुछ रिश्ता नाता है कि नहीं.
Because this happened in my childhood, I'm still doing this. क्योंकि ऐसा मेरे साथ बचपन में हुआ, इसलिए अभी भी मैं ये कर रहा हूं. Find out that connection. It may help you for healing this problem. और ये रिश्ते नाते को जो है देखें आप, तो आपको ये मदद करेगा चंगाई के लिए. 6. छठा, Read Ecclesiastes chapter 2, verse 4 to 11. सबोपदेशक 2 का 4 से लेके 11 तक पढ़े. सबोपदेशक 2 So- questions. 2 का 4 से 11. Why Solomon was not satisfied? क्यों सुलेमान जो है संतुष्ट नहीं था? Why Solomon was not satisfied? क्यों सुलेमान संतुष्ट नहीं था? What lesson you have learned from this passage? आपने इस भाग से क्या सीख सीखी है? Not for preaching, for your life. प्रचार के लिए नहीं, आपने आपके जीवन के लिए क्या सीख सीखा है? Eh? Now, what lesson you have learned from this passage for your life? आपने इस भाग से क्या सीख अपने जीवन के बारे में? Finally, अंत में what is my true need? क्या है मेरी एक जरूरी या सच्ची आवश्यकता? क्या है मेरी एक सच्ची आवश्यकता? Were you given a paper, central need of man? क्या आपको एक कागज दिया गया, मनुष्य की केंद्रीय आवश्यकताएं? ऐसा एक पेपर आपको दिया गया है, मनुष्य की केंद्रीय आवश्यकताएं. Yes. Use that also. उस पेपर का भी आप इस्तेमाल करें And use that and study. You are going to exclude many things you think your need is not accepted by God as your need. और आपकी बहुत सारी जो आवश्यकताएं हैं आप उसे हटा दोगे, क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि परमेश्वर के लिए वो आपकी आवश्यकता नहीं है. Then what is your need? तो फिर आपकी सही में जरूरत क्या है? When you write, this is my need, जब आप लिखते हो ये है मेरी आवश्यकता, do you have time for that? क्या आपके पास समय है उसके लिए? If you don't have time for that, अगर आपके पास उसके लिए समय नहीं है, that need is only theory. वो जरूरत क्या है? एक सैद्धांतिक है, It's not practical. वो प्रयोग में नहीं है. What you are spending all the time is your practical need. और जो भी आप समय, जिस पे भी आप समय बिता रहे हो, वो आपका प्रायोगिक आवश्यकता है. Can you live with a theoretical need? क्या आप एक सैद्धांतिक आवश्यकता से जी सकते हो? Okay. So these are the things you are going to find out. ये सब चीजों को आप ढूंढने वाले हो. So you are going to present your research paper. और आपका जो रिसर्च का पेपर है उसे प्रस्तुत करेंगे. So first, one group will share other words you have found. और पहले जो एक झुंड जो बोलेगा, जो अलग शब्द आपको जो मिले हैं. शब्द कौन से दूसरे और शब्द है? पर्यायवाची उसके दूसरे और. Hmm? Hmm. Having all lot of qualities. Okay. When you have gun sambat, what you say that? तो आपके पास जब अच्छे गुण रहते हैं, गुण संपन्न है, तो उसे क्या कहोगे? Swamiji. स्वामी. Another. Any other word? दूसरा और कोई शब्द? VIP. VIP. VVIP. VVIP. Significance. और उसका महत्व, Image. मेरी छाया, Identity. पहचान, प्रेसिडेंट. You cook yourself in a
pressure cooker called Prestige. आप अपने आप को पकाते हो एक प्रेशर कुकर में जिसको कहते हैं We are प्रेस्टीज, taken for a ride on a car called Esteem. और आपको जो है एक कार में लेके जाया जाता है घुमाने के लिए, उसे कहते हैं एस्टीम या सम्मान। You drag your pride in a VIP. और आप अपने Suitcase. आप अपने घमंड को एक वीआईपी सूटकेस में लेके चलते हो। Supreme. ओ, So many you will find. बहुत सारे हैं, आपको मिल जाएंगे। So many words. बहुत Eh? महामहिम Adipoli, Kalaki, Malayalam, This is slang. Reverend, Right Reverend, आदरणीय, परम पूज्य, श्री श्री श्री, ex-MLA, पूर्व एमएलए, श्री श्री Prime Minister, respected, स्त्री ना, Eh? श्री श्री। respected Prime Minister. So many words. What do you understand from that when you find so many words in a language? इतने सारे जब शब्द आपको मिल जाते हैं एक भाषा में, तो आप क्या समझते हो? Anyone, what do you learn from that? इससे आप क्या सीखते हो? Okay, common and everybody wants. साधारण है, सबको चाहिए, Hot topic. और ये गर्म विषय है एकदम बात करने वाला। Then, one word is not able to explain it. It need many multifaceted topic. और एक शब्द जो है इसका वर्णन कर नहीं सकता, तो कई कई विषयों के द्वारा इसको बोला जाता है। So many aspects for this. बहुत सारे पहलू हैं इसके, So it's a very, very important subject in the society now. और अभी समाज में जो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, So let us listen to other methods that you use. और आप जो विधियों का इस्तेमाल करते हो। Once we were, when I was working earlier in Calcutta, we made duck for a group of people. मैं जो पहले कलकत्ता में था तो हमने बतख बनाया एक झुंड के लोगों के लिए। It was not cooked properly, or it was an old duck. वो थोड़ा पुराना बतख था और अच्छे से पका नहीं, So we gave a name called spring duck for that. हमने उसको एक नाम दिया, If you chew, it will come back as spring. और वो जो है स्प्रिंग के समान, जब हम उसे चबाएंगे तो स्प्रिंग के समान वो वापस अपने मुंह पे से मारता रहता था हमें। So you give a name. आप उसे एक नाम दे देते हो। Any other? दूसरा और कोई, Any other group? Other methods? दूसरी और कोई विधि? Okay, very good method. अच्छी विधि है। We take some pictures and we put in WhatsApp and social media and we let them know. Please pray attending seminar. Okay. इन एयरपोर्ट। Next is my message. Please pray for that. Okay. WhatsApp, other, and you have to quote that verse to them also. और आपको दिखावटी बनना है और वचन से भी लेकर बोलना है। Okay. Any other method? दूसरी और कोई विधि? Purchasing unnecessary gadgets. Okay. Testimonies. गवाही। Others, what did you write? आप लोगों ने क्या लिखा है? Branded clothes, shoes. ब्रांडेड कपड़े, जूते। How do they know it is branded? कैसे पता चलता है कि ये जो है ब्रांड का है? There's a standard sense, like by to wear it in a way The that it's- name must be somewhere, no? लीवाइस। Formerly, when we were all small, people used to have sandwich advertisement. और जब हम लोग छोटे थे, जो सैंडविच का विज्ञापन होता था, Means two boards will be there, one board in front, one board behind. This person will carry it around in the town. और एक बोर्ड जो आगे रहेगा, एक बोर्ड उसके पीछे रहेगा, और ये जो व्यक्ति है पूरे नगर में इसको लेके घूमता था। So
sandwich board. सैंडविच का जो बोर्ड है उसमें, Now he will be paid money for that. और अभी वो उसके लिए पैसा भरेगा, Now you carry the advertisement of company at your expense on और- your body. और अभी आप जो है कंपनी का विज्ञापन अपने शरीर में लेके घूमते हो अपने ही खर्चे पर, You are paying the expense for it. आप ही उसका खर्चा भी भर रहे हो। Then, what other methods? If your hair becomes grey, what will you do? अगर आपका बाल सफेद हो गया तो आप क्या करोगे? Dye it. उसको आप रंग मार दोगे। If you are short, what will you do? अगर आप नाटे हो तो आप क्या करोगे? High heel. थोड़ा हाई हील So from head to foot, it is pretension. और जो सर से बाल से लेके पैर तक दिखावा है। So one method is you can write pretension. एक जो विधि आप लिख सकते हो कि दिखावा करना। Can you say any area where you don't pretend? ऐसा कोई क्षेत्र आप बता सकते हो जहां आप दिखावा नहीं करते? That is mainly you do because nobody wants to be, you don't want to be disturbed. आप ये ऐसा क्यों करते हो? ताकि आपको कोई परेशान ना करे। So you pretend to sleep. तो आप ऐसा दिखावा करते हो कि आप सो रहे हो। Then और any other area? दूसरा कोई क्षेत्र, Is your smile real or pretension? आपका मुस्कुराना बनावटी है कि सही सच्चा है? Words, शब्द आपके, come, we are waiting for you. आओ आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। You are telling your wife, नाचम वरुण. और आपके वो अपने बीवी को बोल रहा, आप बीवी बोल रही थी वो नाच करने वाला आ रहा है। How was the food? खाना कैसा था? It was very horrible, but what you say? बहुत ही बेकार खाना था, लेकिन फिर भी आप क्या कहते हो? And they put one more. और वो आप कहते हैं स्वादिष्ट, और वो लोग एक और थोड़ा और परोस देते हैं आप पे। I can't tell the truth. आप क्यों नहीं सच्चाई बोल सकते? But that way, every house has a different taste, and we're taught to appreciate everything. Oh, that is a problem. वही आपकी समस्या है। It's not actually to get more, like just pick that. Who said you taste. must? Who said you must appreciate? No, there is a different taste. Of Yes. course, I may not like it. You can tell I don't like it. What's the problem? Then he will not order for dinner again. आप बोल सकते हो आपको पसंद नहीं आया। Why should you appreciate? Why can't you eat it and Appreciation, like accepting it, like eat it? But why do you say it was delicious, so good, so nice? आप ऐसा क्यों कहते? Normally the host will ask also, how was the food? Did you like it? जो मालिक है वो भी पूछेगा खाना कैसा था, खाना Properly cooked. अच्छे से पकाया है। Yes. So it is, one is pretension. पहला जो है बनावटी या Now दिखावापन, look at this pretension problem. और ये दिखावटीपन है, इसकी जरा देखेंगे। When you are sitting here, you have one expression. आप जब यहाँ बैठे हो तो आपका आपका जो आप जो दिखाते हो वो एक आपका एक्सप्रेशन है। When you go out for tea break, you are have another very joyful, आप जब चाय पीने जाते हो तो आप बहुत ही आनंदित रहते हो, as if you have come out of water. ऐसा लगता है जैसे आप पानी से बाहर आए हो। It's over. Inside the church, you have another face. और कलीसिया के अंदर आपका जो है दूसरा ही मुखौटा When you go to the शक्ल office, रहता you are है। a different person. और आप दफ्तर जाते हो तो आपका जो चेहरा या आप अलग व्यक्ति होते हो। When you go home, you are another person. आप जब घर जाते हो आप एक अलग व्यक्ति हो। So finally, somebody is asking, "Who are you?" अंत में कोई पूछता है आप कौन हो? We say, "We are many." आप कहते हो हम बहुत हैं, Legion. सेना। So who is the real person? कौन है सही व्यक्ति इसमें? Do you know your person? क्या आप अपने व्यक्ति को आप जानते हो? Are you the same everywhere? क्या आप हर जगह एक समान हो?
This is one of the reasons for identity crisis. और यही जो है अपने पहचान की जो संकट आती है उसे कहते हैं। And it creates lot of tension inside. और ये काफी जो है तनाव अंदर लेके आ जाता है। Can you be the same everywhere? क्या आप एक समान हर जगह रह सकते हो? Okay. Another method is proving. दूसरी विधि जो है साबित करना। The first method is pretension. पहला- Second is proving. पहला जो है बनावटीपन या दिखावापन, अगला जो है साबित करना। How do you prove? कैसे आप साबित करोगे? Usually conducting a expensive wedding. और एक बहुत ही महंगी शादी कर रखना। Spend so much money and you go into debt also. और आप इतना पैसा खर्चा करते हो कि आप कर्ज में चले जाते हो। In Mumbai, we were having an LRS in a Orthodox church. और मुंबई में एक एलआरएस हो रहा था एक ऑर्थोडॉक्स कलीसिया में, They had a parish hall below. और पैरिश हॉल उसके नीचे था, There was a wedding reception. और एक शादी का रिसेप्शन उधर चल रहा था। I was asking someone how much is per plate there. मैंने किसी से पूछा जो पर प्लेट खाना है वो कितने का है? Only 2,000 rupees. बोला केवल 2000 रुपए का है एक प्लेट खाना। How much is preparation for a bride? और कितना जो है एक दुल्हन को तैयारी के लिए चाहिए? In Kerala? केरला में अगर एक दुल्हन को तैयार होना है तो Anybody has any idea? क्या किसी के पास कोई इसके बारे में कोई विचार है? कितना दुल्हन को तैयार होने के लिए चाहिए पैसा? No, more than that. It comes to a lakh. 3 days preparation. और लाख तक आ जाएगा और 3 दिन की तैयारी होती है। Same thing happens to bridegroom also. और जो दूल्हा होता है उसके साथ भी यही होता है। How much is for your photography and video? फोटो खींचने का कितना पैसा खर्चा हो जाता है? Yes. हाँ. One photographer was hanging from a tree to take a photograph of. ऐसा फोटो एक जो फोटोग्राफर है पेड़ में उल्टा लटका हुआ था दूल्हा दुल्हन की तस्वीर लेने के लिए। It's all proving. ये सब साबित करना है। Proving your knowledge. अपने ज्ञान को साबित करना। Third is power grabbing. तीसरा जो है जो अपना जो बल या सामर्थ्य को पकड़े रखना। Pretension, proving, power grabbing. और जो सामर्थ्य या शक्ति को पकड़े रखना। How do you get power? कैसे आपको शक्ति मिलती है? Power of knowledge. आपके ज्ञान की जो शक्ति है। Knowledge, nowadays you don't need knowledge, degree is enough. अभी आपको जो है ज्ञान नहीं चाहिए, डिग्री काफी है। Power of money. और जो है धन का जो ताकत है। Power of influence. और प्रभाव का जो आपके पास ताकत है। I know this VIP's number. मेरे पास प्रभाव है कि मैं इस VIP को जानता हूँ। Sometimes power of muscle also. कभी कभी आपकी मांसपेशियों का ताकत। That means you carry some gundas with you. आप कुछ गुंडों को अपने साथ लेकर चलते हो। Tamil Nadu, one bishop was coming to meetings with 3 or 4 gundas. और तमिलनाडु में जो एक बिशप है वो सभा में आता था 3 या 4 गुंडों को लेकर। It has become not only politicians. और केवल राजनेताओं के साथ ही नहीं। Fourth method is चौथी जो विधि है position in the ladder. और जो सीढ़ी में स्थान। Your name is, title is important. और आपका जो शीर्षक है, नाम है, वो महत्वपूर्ण है। You may be the only person in the company, आप शायद एक ही व्यक्ति होंगे वो कंपनी में, but your title will be deputy director. लेकिन आपका जो शीर्षक होगा डेप्यूटी निर्देशक। समझे नहीं? एक ही है फिर भी वो। So you need titles usually. आपको क्या चाहिए? शीर्षक चाहिए।
A girl refused to marry anyone, he must be in a very high post. और एक लड़की ने शादी से इनकार कर दिया, और जो व्यक्ति शादी करना चाहिए वो बड़े ऊंचे पद में होना चाहिए, ओहदे में होना Any चाहिए। proposal father brings, she will not agree. कोई भी न्योता आता है शादी का, वो बेटी उसे स्वीकार नहीं करती थी। Finally, he brought a proposal. अंत में पिता ने एक और न्योता लेके आया, Very high post. एक ऊंचे ओहदे में काम करने वाला He was व्यक्ति। working in electric post. वो इलेक्ट्रिक पोस्ट में, बिजली के खंबे में काम करने वाला, काफी ऊपर बैठ के काम करता है। What to do with these people? क्या करें इस लोगों के साथ? हमेशा ऊपर ही रहता है। Finally, the method is pretension, not pleasing people. और अंत का जो एक विधि है, लोगों को प्रसन्न करना। You have to carry bottle of oil or butter. और आपको जो है एक जो है डब्बा तेल का या मक्खन का लेके घूमना है, Always applied. और इसको तेल को मक्खन को लगाते रहो। How do you do that? कैसे आप इसको लगाते रहते हो? हाँ जी, हाँ जी. You go with your superior. आप अपने जो है सीनियर के साथ जाते हो। Is it day now? क्या ये दिन है अभी? Yes. हाँ, I think it is night. मेरे को लगता है कि अभी रात Yes, है। sir. यस, अभी रात है। Anything you said. आप जो भी कुछ Once you कहो, start pleasing people, you become a slave of that person. और जब आप किसी को प्रसन्न करने लगते हो तो आप उसके गुलाम बन जाते हो। These are the 5 methods of getting approval from people. और ये जो है 3 विधियां हैं जिससे आप लोगों से सहमति लेते हो। 5. 5 विधियां हैं। What are they? क्या है वो? Pretension, दिखावा, proving, साबित करना, position in the ladder, और सीढ़ी में स्थान, pleasing people. और लोगों को प्रसन्न करना। Together they can be called as self-salvation ways. और इसे हम मिला के अगर कह दे तो खुद को बचाने का प्रयास या मार्ग। Okay. How much money you spend on this? आप कितना धन इसमें खर्चा करते हो? Your group. आपका झुंड बताए कितना धन खर्चा करोगे? What idea you came to? How much money you spend on this? क्या आपको उसमें विचार आया कि आप कितना धन इन सब के पीछे खर्चा करते हो? 99%. More than income. आय से भी ज्यादा। Hmm? 199%. Many of you may be in debt also. आप बहुत से लोग कर्ज में भी रहे होंगे। Whenever you buy things on hire purchase, you are stealing things of others. जब भी आप चीजों को महंगे दामों में खरीदते हो, आप दूसरों के चीजों को चोरी कर रहे हो। They are permitting you to steal. और ओके, जब आप उधार में लेते हो तो Because you are not yet paid. It's not yours. आपने उसका चुकाया नहीं किया है, वो आपका नहीं है। The day you fail in paying, they take the things away. जिस दिन आप जो है उसके किस्तों को भरना बंद कर देते हो, उस दिन वो उसको लेके चले जाएंगे। There are people to recover things. और इसका पैसा लेने के लिए लोग रहते हैं जो आएंगे आपके पास। So, money. How much time you spend? धन, आप कितना समय व्यतीत करते हो? In this matter, how much time you spend? इस विषय में कितना समय व्यतीत करते हो? You don't have any problem in this. How much time? यहाँ कोई समस्या नहीं है क्या इधर? कितना समय? क्या बोला? How much we can be? How much I can spend? Others? दूसरा और कोई? You need to know what you are doing with your time. और आपको ये जानना जरूरी है कि आपके समय के साथ आप क्या कर रहे हो। Still, after doing all this, you have fear of what others will think. You cannot talk.
और फिर भी आपको क्या डर लगता है कि आप बोल नहीं पा रहे कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे? This is a time for you to talk. और ये है समय आपके लिए बात करने का। How much time? कितना समय? Any idea? दूसरे को आइडिया, दूसरा कोई विचार? Full time? पूरा समय। Jada is not enough. ज्यादा काफी नहीं है। You do very clear, take time later also. How much time I am spending on this? और स्पष्ट रहें, बाद में भी आप इसमें समय लें कि कितना समय मैं इसमें बिता रहा हूँ। Did you understand this question? क्या आप इस सवाल को समझे? You also, आप भी person in front, जो आगे बैठे हैं आकाश, समझा आप यहाँ पे? sorry. नहीं, इनको बोल। You can share, talk. आप भी बोल सकते हो, बात कर सकते हो। Doesn't matter to me. ये मेरे लिए कुछ भी, मेरे लिए कोई बात नहीं है ये। See, when the Lord takes this subject, it's one of the most important aspect of life. और जब प्रभु इस विषय को लेता है, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ये। Don't consider this as a ordinary subject. और इसे कोई साधारण विषय आप ना समझें। You will study how other Bible passages are all connected to this. आप इसका अध्ययन करोगे कि कैसे बाइबल के जो दूसरे भाग हैं इससे जुड़े हुए हैं। One of the main problems. और सबसे एक प्रमुख समस्या। So you need to enter in not only here, later also to see how this issue is controlling my life. और आपको इसमें प्रवेश करना है, अभी भी नहीं, बाद में भी, कि कैसे ये मेरे जीवन में नियंत्रण रखे है। One of the reasons why Bible is not able to correct your life, you are not finding out what the Bible tells about your life. और बाइबल आपको सही क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि आप ये नहीं जानना चाहते कि बाइबल आपसे क्या कह रहा है। You keep a good barrier and never allow it to enter. आप एक अच्छा रुकावट को रखते हो और फिर उसको अंदर आने देते नहीं हो। Double-edged sword which wants to pierce through. और जो दोहरी तलवार है जो अंदर भेदना चाहती है, To divide and show and make you naked. और आपको जो है विभाजित करके वो आपको नंगा करके दिखाना चाहती है। But you can protect it. आप लेकिन उसको सुरक्षा दे सकते Never हो, allow it. उसे अनुमति ना देकर। I don't bother about it. मुझे इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं है, I am not caring. मुझे इसका ज्यादा ध्यान भी नहीं है। It won't enter. वो अंदर प्रवेश नहीं करेगा। If you want healing, अगर आपको चंगाई चाहिए, you must allow the Spirit of God to open you up and show you. और तो आप पवित्र आत्मा को आप अनुमति दे कि वो खुल के आपको बताए। But it is very difficult लेकिन ये काफी मुश्किल है, because we get exposed. क्योंकि क्या हो जाता है, हमारा सब बाहर आ जाता है, दिख Immediate जाता है। response is hide and seek. तो सबसे जल्दी प्रतिक्रिया क्या होगी? छुपा दें, गुप्त में रखें। A young man, after a meeting, was asking lot of questions to Dr. Stanley Jones. और एक जवान व्यक्ति सभा के बाद डॉक्टर स्टैनली जॉन से कई सवाल पूछ रहा था, He was going on answering. और वो उत्तर भी देते जा रहे थे, The questions were becoming difficult. और जो सवाल जो है मुश्किलात होते जा रहे थे। The Spirit reminded Dr. Stanley Jones to ask one question to the other person. और आत्मा ने स्टैनली जोन्स से बोला कि एक सवाल तुम उससे पूछो। Young man, जवान लड़का, can I ask you a question? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? Do you have moral problems? क्या आपको नैतिक समस्याएं हैं? Immediately broke down and began to cry. और तुरंत जो है वो रोने लगा और टूट गया। Questions, silence can be to prevent you from seeing yourself. सवाल और शांत रहना आपको अपने आप से देखने में आपको रोक रहा है। Not here in the meeting, even in your own personal Bible study. और केवल इस सभा में ही नहीं, आपके व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन में भी। You will say, I don't get anything from the Bible. आप बोलोगे मुझे बाइबल से कुछ भी नहीं मिलता है, Just because you are not allowing it to enter. क्योंकि आप उसको अंदर प्रवेश करने नहीं दे रहे हो। Read from Isaiah 55, यशाया 55 11th verse. 55 का 11। यशाया 55 का 11। उसी
जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। See, Prophet Jeremiah brought the word to the people of God. और नबी यिर्मयाह ने जो है एक वचन लोगों के पास लाया, They will not listen. वो उसे नहीं सुनते, He began to taunt them. और वो जो है उन्हें प्रताड़ित करने लगा। First you said, you're all committing adultery. पहला उसने कहा कि आप सब जो है व्यभिचार कर रहे हो, They are not moved. लेकिन वो हिले नहीं। You're all committing, you are prostitutes. आप सब व्यभिचारनियां हो, No. नहीं। You're all whores. आप सब जो वैश्या हो, No. नहीं। Then he said, you have made your forehead like bronze, your neck stiff like iron. और आपने जो है अपने माथे को पीतल के समान बना दिया है, और अपने गर्दन को जो है लोहे के समान जो है कड़क बना दिया है। Even today is the same. और आज भी वैसा ही है। We can build strong barriers and never allow the word to enter ours. हम जो है एकदम बलशाली जो रुकावटों को बना सकते हैं और वचन को अंतर प्रवेश करने नहीं देंगे। So one other important thing to do is when you read the word, allow the word of God to read you. और जब एक चीज आप जो कर सकते हो, जब आप वचन पढ़ते हो तो अनुमति दे वचन को कि वो आपको पढ़े। So when you go out, talk to one another about your consequences and how much time I spend, how much money I spend. Talk on that to one another. और आप जाओगे तो परिणाम के बारे में, कितना पैसा खर्चा करते हो, ये सब के बारे में एक दूसरे से आप बात करें। Another matter also before going. और एक और विषय जाने के When पहले, you come to a hospital जब आप एक अस्पताल में आते हो, and when you are diagnosed with cancer, जब जांच होती है कि आपको कैंसर है, I had never seen a patient going out and smiling and laughing. और मैंने कभी देखा नहीं है कि एक मरीज जो है हंसते हुए मुस्कुराते हुए बाहर जा रहा है। But when you see big problem revealed to us through Bible, जब आप देखते हो कि बड़ी समस्याएं जब वचन के द्वारा प्रकट की जाती हैं, we can joke and smile and leave it, हम मजाक उड़ाकर मुस्कुराकर उसे छोड़ सकते हैं, make fun of. का मजाक उड़ाते हैं। It doesn't take effect again. A village man, when he comes, if I tell you I have cancer, he will say, give me 2 tablets. और अगर एक गांव का आदमी आएगा और मैं उसे कहूं कि तुझे कैंसर है, तो वो कहेगा मुझे 2 गोलियां दे दो। It doesn't matter to you. उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। I don't know. When you study Bible, is it entering into your life and showing what's the problem? और मुझे मालूम नहीं, जब आप बाइबल अध्ययन करते हो क्या ये आपके अंदर प्रवेश कर रहा है और आपके जीवन को दर्शा रहा है। Let the Lord's Spirit help you. और परमेश्वर की आत्मा आपको मदद करे। Shall we be silent? क्या हम शांत रहेंगे?